Right. So, hello everyone, and welcome to the biggest online education platform of India, that is the Unacademy group. So, Unacademy पे सभी का स्वागत है. So, how are you all, guys? Actually, today our session was supposed to be at 8 a.m. सुबह 8 बजे क्लास होनी थी, but due to some technical reasons, कुछ technical issues आ गए थे, उसके कारण today only we are conducting the class at 3:30 p.m. ऑलराइट. और हम लोग पढ़ रहे हैं फ्लूइड मैकेनिक्स. और फ्लूइड मैकेनिक्स में हमारा जो टॉपिक है दैट इज इंट्रोडक्शन टू टर्बाइंस. ऑलराइट, दिस इज आवर लेक्चर. तो इंट्रोडक्शन टू टर्बाइंस का हम लोग एक लेक्चर पहले पढ़ चुके हैं. अब जो हम पढ़ रहे हैं वो सेकंड पार्ट पढ़ रहे हैं, जिसमें हम लोग पेल्टन व्हील टर्बाइन का थोड़ा डिजाइनिंग पढ़ेंगे. Alright, so we'll be solving some numericals. So it is necessary कि आप लोग एक कैलसी कैरी करें and solve the questions according जैसा जैसे मैं क्वेश्चन कराता था. Alright, so once again let's crack GATE in ESE with India's largest learning platform. So before I start, this is something about me. My name is Ruchin Tejawat and I am an educator on Unacademy platform. Also, you can follow me on Unacademy. You can follow me on Unacademy at this by following this URL. और इसको फॉलो करेंगे मुझे तो आपको नए नए नोटिफिकेशंस मिलते रहेंगे. बहुत फ़ायदे हैं मुझे फॉलो करने के. आपको नए अपडेट्स मिलते रहेंगे, कब कौन सा सब्जेक्ट स्टार्ट होना है, कब कैसे एग्ज़ाम की तैयारी करनी है, एवरीथिंग. ओके. नाउ आई हैव अ टीचिंग एक्सपीरियंस ऑफ मोर देन 6 years in the field of GATE and ESE and PSUs. I have also completed my masters from IIT Kanpur and I have secured an all India rank of 165 in GATE examination. And apart from that, I have also been training students online and offline, both the type of students I'm training. And I can also give you how to score all India rank under 100. So do go and watch my lecture on that. I have made a separate video of how you can secure an all India rank of under 100. I was 165 was because of some mistakes. मैं 165 पर है क्या. अगर आप मिस्टेक्स अवॉइड करेंगे तो यू विल डेफिनेटली लैंड एट अराउंड ऑल इंडिया रैंक अंडर 100. हेलो नीतीश, हाउ आर यू? राइट. एंड अगर आपको कुछ भी इशू आता है तो यू कैन डायरेक्टली मेल मी एट दिस ruchin.udz@gmail.com. You can directly mail me on this, or also you can contact me at @Ruchin Tejawat. Right? This is my Telegram ID. This is my Telegram ID, so you can follow me here also. आपको कुछ भी प्रॉब्लम आती है आप मुझसे पूछ सकते हो. Alright, so now what you have to do is very easy. You need to download the Unacademy learning app. आपको Unacademy का लर्निंग ऐप डाउनलोड करना है. प्ले स्टोर पे आपको बड़ी आसानी से मिल जाएगा. उसके बाद में डाउनलोड करके यू विल फाइंड वेरियस बहुत सारे आपको एग्जाम्स की तैयारी करने के ऑप्शंस मिलेंगे. लाइक वेदर यू वांट टू प्रिपेयर फॉर योर गेट और यू वांट टू प्रिपेयर फॉर इंजीनियरिंग सर्विसेज, यू वांट टू प्रिपेयर फॉर NLC, iPad, अलग अलग सभी एग्ज़ाम्स के लिए सभी एग्ज़ाम्स के लिए क्या है, यहाँ पे कोर्सेज अवेलेबल हैं. और आपको क्या क्या मिलता है, यू विल गेट लाइव क्लासेस. आपको लाइव क्लासेस मिलेंगी. ऑल्सो यू विल गेट रिकॉर्डेड सेशंस. You will get recorded sessions, and after recorded session what you will get test series to analyze yourself. Alright, so this is a brief discussion with me, and I have completed my masters from IIT Kanpur. You can आप देख सकते हो आपको जो भी एडुकेटर पढ़ा रहे हैं they are highly qualified. Like me, I have completed a master's from this place, and I have also secured an all India rank of 165 in GATE examination. Alright, and apart from that, I have qualified many competitive examinations, including BAR, ISRO, etc.
and I've also worked as project engineer in Mumbai Railways, and that too for a period of 15 months. 15 महीनों के लिए I've also worked as project engineer in Mumbai Railways. And the reason behind pursuing higher studies over any government job is that is to have some real taste of engineering. Actually, what is engineering? You will get to know when you go and pursue MTech in some prestigious colleges like this. So there are 7-8 IITs where you can go. Not 7-8, I would say there are 15 IITs where you can go. There are NITs, there is ISC, there are some private colleges which are very good, and some there are state universities also, state government college, where you can go and pursue masters. And after masters, you will get placed very easily. You will get placement in top MNCs. All right. So about my experience, I had a very good experience, and research experience was also good. And why I've joined Unacademy? I've joined Unacademy for all those students who cannot study in a coaching institute, who cannot afford the fees of a coaching institute. So that's why I am here to give my education, to give my knowledge to the students who are not able to afford the coaching institutes. Now coming to the gate fee and subscriptions. So what you have is you have got 1 month subscription, 3 month, 6 month, 12 month, and 24 month subscription. We've got different subscriptions. Like for example, if you go for this 3 month, the total fee is 12,500. If you go for 6 month, total fee is 20,000. Likewise, 12 month and 24 month. You see that you can notice one thing, that when the number of months increases, 3 months, 6 months, 12 months, 24 months, as the month increases, your fee also increases. But notice one thing, as the month increases, the per month cost is decreasing. This per month cost decreases. Alright, so the best would be if you are a second year or third year graduate, so you can go directly for 12 month or 24 month. The per month fee would be approximately 2083. That you will get by dividing 25,000 by 12. You will get this figure. And if you divide 30,000 divided by 24, so you will get this figure. अगर आप इस फिगर को और छोटा करना चाहते हैं, if you want to have some more discounts and all, so what you can do is you can use my promo code, which is Ruchin Live, and you will get 10% additional discount. जैसे आप promo code use करेंगे, you will get 10% additional discount, and from that your reduced fee would be approximately 27,000 only. Your fee would be only 27,000. Alright, so with this you can study. अब पढ़ाई कर सकते हो, और पढ़ाई बहुत अच्छी होगी. बिलीव मी, योर स्टडी विल बी वेरी गुड. पढ़ाई बहुत अच्छी होने वाली है अनअकैडमी पे. एंड विद दिस यू विल ऑल्सो गेट सोशल मीडिया हैंडल्स वेर यू विल गेट सेपरेट इंफॉर्मेशन अबाउट व्हाट आर द डिफरेंट एग्जामिनेशन, अपकमिंग एग्जामिनेशन, एग्जाम के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहेंगे. यू विल गेट इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट्स एंड ऑल वगैरह वगैरह सारी चीज़ें आपको मिलती रहेंगी. ऑलराइट, सो विद दिस लेट्स गेट बैक टू वर्क. Okay, so this is my open board. I have opened my open board, and now we'll start off with turbines. Alright, so last lecture में we have seen there are basically two types of turbines. First is impulse turbine, the second is रिएक्शन टर्बाइन. एक हमारा इम्पल्स टर्बाइन है और एक हमारा क्या है, रिएक्शन टर्बाइन. और इम्पल्स टर्बाइन का एग्जाम्पल क्या है? एग्जाम्पल ऑफ इम्पल्स टर्बाइन इज पेल्टन व्हील टर्बाइन. और रिएक्शन टर्बाइन का एग्जाम्पल क्या है? एग्जाम्पल इज फ्रांसिस टर्बाइन. Hello Amit, good evening. Francis turbine and Kaplan turbine. So in the last lecture हम लोग पेल्टन व्हील टर्बाइन को देख चुके हैं. ओके, तो हम क्या करते हैं, आई विल जस्ट सॉल्व दिस क्वेश्चन. इसका बेसिक पार्ट मैं बता चुका था.
हम लोग इसको लेकर एक न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं एंड देन वील गो टू द डिजाइनिंग पार्ट. ओके, सो आई विल बी सॉल्विंग अ प्रीवियस क्वेश्चन ओनली. जब हमने प्रीवियस क्वेश्चन किया था विद जस्ट अ स्लाइट मॉडिफिकेशंस. सो द क्वेश्चन इज a Pelton wheel has mean bucket velocity of 10 meter per second and hits a jet of water flowing at the rate of 700 liters per second. The bucket deflects the jet through an angle of 160 degrees calculate the power given by the water to the runner and the hydraulic efficiency of the turbine. Assume absolute velocity of jet at inlet equal to 23.77 meter per second and assume no losses. We have to assume that there are no losses. ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन है जो कि हमें सॉल्व करना है. राइट, इसके बाद हम लोग डिजाइनिंग वाला पार्ट वो सब भी करेंगे. देखो, सो व्हाट इज गिवन इन दिस क्वेश्चन. दिस क्वेश्चन वाज आस्क्ड इन इंजीनियरिंग सर्विसेज, ईएससी का क्वेश्चन है. ओके, और वेरी मच यूजफुल फॉर मैकेनिकल स्टूडेंट्स. मैकेनिकल के लिए बहुत ज़्यादा काम है क्योंकि सिविल में इतना ज़्यादा नहीं आता है इससे, तो मैकेनिकल के लिए बहुत ज़्यादा आता है. ऑलराइट, सो द क्वेश्चन इज अ पेल्टन व्हील हैज़ अ मीन बकेट वेलोसिटी ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड. यू मुझे कितना दे रखा है, 10 मीटर पर सेकेंड, एंड हिट्स अ जेट ऑफ वाटर फ्लोइंग एट द रेट ऑफ 700 liter per second, so that is 0.7 meter cube per second. The bucket deflects the jet through an angle of 160 degree. यानी एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन कितना दे रखा है, 160 डिग्रीज दे रखा है एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन. ओके, कैलकुलेट द पावर गिवन बाय द वाटर टू द रनर एंड द हाइड्रोलिक एफिशिएंसी ऑफ द टर्बाइन. ओके, तो यहाँ पे क्या करना है हमें, जैसे सबसे पहले लेट मी ड्रॉ दिस फिगर. थोड़ा सा मैं फिगर बना दूँ. लाइक दिस इज माई टर्बाइन का ब्लेड है, और यहाँ पे दिस इज द एब्सोल्यूट वेलोसिटी ऑफ जेट V1. यहाँ से पानी आएगा, इस तरीके से तो फ्लो करेगा एंड देन इट विल मूव आउट विथ सम वेलोसिटी VR2. राइट, एंड नाउ इट इज मूविंग विथ सम वेलोसिटी U. तो जेट इस डायरेक्शन में आ रहा था और यहाँ से कुछ ऐसे चला गया. दिस एंगल इज गिवन एज 160 डिग्री. सो व्हाट विल बी दिस एंगल, ये एंगल बचेगा हमारे लिए 20 डिग्री. सिंपल सा, दिस एंगल विल बी 20 डिग्री. तो यहाँ से भी दिस एंगल विल बी, दिस इज U 20 डिग्री. ऑलराइट, और यहाँ से दिस इज V2. और इसके दो कंपोनेंट कौन कौन से हो जाएंगे, VF2 एंड दिस विल बी
VW2, राइट। अब ये यहाँ पे इट इज मूविंग विद सम वेलोसिटी u, तो यहाँ पे ये हिट करेगा विद सम वेलोसिटी VR1, राइट। नाउ इफ देर आर नो लॉसेस, ये हमारा वेलोसिटी ट्रायंगल बन गया। if there are no losses, then VR1 will be equal to VR2. if there are no losses, तो क्या होगा, VR1 will be equal to VR2, है ना। अब इधर देखना है, when VR1 equal to VR2 है, तो यहाँ पे what we can actually do is हम लोगों को निकालना है, फर्स्ट ऑफ ऑल what we have to find, calculate the power given by the water to the runner. ओके, तो यहाँ पे power given by water to the runner is work done per second, that is equal to Fx into U. This is equal to runner power, तो Fx कितना हो जाएगा, रो क्यू V initial minus V final into U. We have seen this. Rho is 1000. Discharge is 0.7 meter cube per second. What is initial velocity? Initial velocity in x direction is VR1 minus what is the final velocity in x direction? That is equal to minus of VR2 cos phi, VR2 cos phi into U. तो यहाँ पे वैल्यूज रख देते हैं। अगर मुझे ऐसा दे रखा है दैट VR1 इक्वल टू VR2, तो यहाँ पे व्हाट इज द वैल्यू ऑफ VR1, सिंपली दैट इज इक्वल टू V1 माइनस U के बराबर हो जाएगा। व्हाट इज V1? V1 हमारा किसके बराबर है, 23.77 माइनस 10, तो ये हमें मिलेगा 13.77 मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ पे व्हाट वी कैन कैलकुलेट, रनर पावर सीधा निकाल लेते हैं। रनर पावर, वेन्स एक्चुअली ब्लेड होते हैं दीपक, वेन्स आर एक्चुअली ब्लेड्स ऑफ द टर्बाइन। वेन्स आर एक्चुअली ब्लेड्स ऑफ द टर्बाइन। तो यहाँ पे बस इन वैल्यूज को रख देते हैं, 1000 इंटू 0.7 इंटू VR1 कितना हो गया, 13.77 प्लस 13.77 इंटू कॉस 20 डिग्री इंटू U हमारे पास है 10। इसको सॉल्व करेंगे तो हमें मिलेगा अप्रॉक्सीमेटली इट इज 187 किलोवाट। ये हमारा फर्स्ट पार्ट आ गया। ऑलराइट, दिस इज द फर्स्ट पार्ट। कितना आ रहा है, कैलकुलेट द पावर गिवन बाय द वाटर टू द रनर, तो ये कितना है 187 किलोवाट्स। नेक्स्ट हम लोग आते हैं, हमें निकालना है व्हाट इज द हाइड्रोलिक एफिशिएंसी। तो हाइड्रोलिक एफिशिएंसी किसके बराबर होती है, दिस इज एक्चुअली रनर पावर अपॉन हाइड्रोलिक पावर। तो पहले निकाल लेते हैं यहाँ पे हाइड्रोलिक पावर। हाइड्रोलिक पावर, so hydraulic power will be equal to kinetic energy half mv square half into rho q v square सिंपली। तो यहाँ पे ये कितना आएगा, हाफ इंटू रो कितना है 1000, डिस्चार्ज कितना है 0.7 इंटू दिस इज 23.77 होल स्क्वायर। तो यहाँ पे जैसे इसे हम लोग सॉल्व करेंगे हमें ये मिलेगा 197.75 किलोवाट्स। दिस इज हाइड्रोलिक पावर, ठीक है।
दिस इज माई हाइड्रोलिक पावर। तो अब यहाँ पे हाइड्रोलिक पावर को उठा के हम लोग रख देंगे यहाँ पे, और इसे उठा के रख देंगे यहाँ पे। तो वी विल गेट hydraulic efficiency as 187 upon 197.75. So this will approximately come out to be 90.77%. ओके, ये हमारा हाइड्रोलिक एफिशिएंसी आया। ऑलराइट, अब हमें क्या करना है, ये तो एक क्वेश्चन हो गया हमारा जो हमने कल लास्ट पढ़ा था उसके बेसिस पे। अब हम कर लेते हैं डिजाइनिंग ऑफ a Pelton wheel turbine। देखो नीतीश, एक्चुअली क्या है, मैं आपको बताता हूँ। देखो एक्चुअली में होता क्या है, लाइक दिस इज योर डैम। ऐसा कोई डैम है, यहाँ पे वाटर स्टोर्ड है इस जगह पर। तो ये क्या करता है, यहाँ से पानी ऐसे ऐसे आएगा इन अ पेन स्टॉक। किसी पेन स्टॉक में आएगा, किसी पेन स्टॉक क्या होता है, पाइप ऑफ वेरी लार्ज डायमीटर, उसे पेन स्टॉक कहते हैं। यहाँ से पानी आएगा और ऐसे इसको यहाँ पे हिट करेगा, और यहाँ पे हमारा टरबाइन रखा होगा, और यहाँ पे टरबाइन के ऐसे ऐसे ब्लेड रखेंगे। ओके, और ये हमारा पूरा का पूरा एक पावर हाउस होगा। ओके, अब क्या होगा, जैसे ही टरबाइन इसको हिट करेगा, ये ब्लेड इस तरीके से इस डायरेक्शन में रोटेट करने लगेंगे, एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करने लगेगा। एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेगा, पानी यहाँ से चल के ऐसे कुछ आएगा। ऑलराइट, और यहाँ पे दिस इज डेटम, और पानी नीचे गिर के कहाँ जाएगा, एक कैनाल में जाता है। दिस इज अ कैनाल। तो एक्चुअली में क्या होता है, ये जो पानी आ रहा है और इसके पीछे क्या होगा, एक शाफ्ट लगा होगा टरबाइन के पीछे। टरबाइन के पीछे एक शाफ्ट लगा होगा, है ना। तो होता क्या है, ये जो पानी आ रहा है, पानी इस रनर को रोटेट कर रहा है। तो दिस इज एक्चुअली हाइड्रोलिक पावर। The hydraulic power is in the form of kinetic energy that is equal to half mv square, राइट। उसके बाद ये रनर पावर में कन्वर्ट होता है। तो हाइड्रोलिक पावर के बाद हमारा आता है रनर पावर। सो द रनर पावर इज फोर्स इनटू यू, और उसके बाद में हमारा आता है शाफ्ट पावर। रनर पावर के हमारे इसके बाद क्या आता है, शाफ्ट पावर। हाइड्रोलिक पावर, रनर पावर, ये जो एफिशिएंसी होती है, दिस इज कॉल्ड हाइड्रोलिक एफिशिएंसी। इन दोनों का जो एफिशिएंसी होता है, दैट इज कॉल्ड मैकेनिकल एफिशिएंसी। मैकेनिकल एफिशिएंसी। और हाइड्रोलिक और शाफ्ट पावर का जो एफिशिएंसी होता है, दैट इज कॉल्ड ओवरऑल एफिशिएंसी। ऑलराइट, तो ये हमारा सिस्टम होता है। एक्चुअली अगर आपने अभी समझ में नहीं आ रहा है, सो आप मेरा पहले वाला लेक्चर देखो, उसके अंदर मैंने ये सारी चीज़ें थोड़ा डेप्थ में बता रखी है। अब देखोगे आपको समझ में आ जाएगा। ओके, कि हमारा हाइड्रोलिक पावर इसके बराबर कैसे हुआ, काइनेटिक एनर्जी के बराबर कैसे हुआ, और सिस्टम कैसे चल रहा है। ऑलराइट, ठीक। अब हम लोग आगे चलते हैं। हमें नेक्स्ट करना है डिजाइनिंग ऑफ पेल्टन व्हील टरबाइन। तो पेल्टन व्हील की डिजाइनिंग में देयर आर सम इंपॉर्टेंट टर्म्स। There are some important terms. The first term is हाँ नीतीश, नोजल का एफिशिएंसी 100% एज्यूम कर रहा है कि नोजल का एफिशिएंसी 100% है। ऑलराइट, अब इंपॉर्टेंट टर्म्स में फर्स्ट आता है हमारा वेलोसिटी ऑफ जेट।
So what is the velocity of jet? The velocity of jet is given by v equal to cv under root 2gh. Alright, where this cv is coefficient of velocity. This is actually 0.9 to 0.99. H is net head. नेट हेडर इनलेट. ठीक है, यह हमारा हुआ वेलोसिटी ऑफ जेट. सेकेंड इंपॉर्टेंट टर्म हमारे पास में आता है ब्लेड वेलोसिटी, ब्लेड और वेन वेलोसिटी. यानी ये हमारा क्या है, टरबाइन का वेलोसिटी. टरबाइन कितनी स्पीड से रोटेट कर रहा है. लाइक जैसे यहाँ पे फॉर एग्जांपल अगर ऐसा कोई टरबाइन है, ओके, तो ये यहाँ से जेट आएगा. जेट यहाँ से आएगा, इट विल रोटेट इन दिस डायरेक्शन, है ना, ऐसे एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेगा. मान लो एन आरपीएम पे वो रोटेट कर रहा है. तो जेट वेलोसिटी को देते हैं हम लोग सी यू इंटू अंडर रूट 2gh. ऑल्सो यू इज इक्वल टू पाई डी एन अपॉन 60. सी यू अंडर रूट 2gh एंड यू इक्वल टू पाई डी एन बाय 60, वेयर दिस एच इज नेट हेड, सी यू इज कोफिशिएंट ऑफ वेलोसिटी. ये 0.4 से लेके 0.5 तक कुछ रहता है, 0.5 ऐसा होता है. डी इज डायाफ्राम एंड एन इज स्पीड इन आरपीएम. ठीक है, ये हमारा हो गया ब्लेड वेलोसिटी, ब्लेड और वेन वेलोसिटी. थर्ड पॉइंट पे आते हैं. Third point is the angle of deflection. Angle of deflection is generally taken as 165 degrees. और फोर्थ इसके बाद में द नंबर ऑफ बकेट्स. बकेट्स का नंबर कितना है, तो दैट इज इक्वल टू 15 प्लस 0.5 m. इसे ध्यान रखेंगे, वेयर m इज जेट रेशियो. जेट रेशियो ये क्या होता है, कैपिटल D बाय स्मॉल d, दैट इज इक्वल टू कैपिटल D बाय स्मॉल d. दिस इज इक्वल टू डाई ऑफ Pelton wheel divided by die of knob. तो ये 4 पॉइंट्स ध्यान रखने. इन 4 पॉइंट्स के बेसिस पे हम लोगों का पूरा डिजाइनिंग होता है. और एक और लिख लेते हैं वर्क डन पर सेकेंड, और दिस इज ऑल्सो कॉल्ड रनर पावर, है ना. यही हमने देखा है. किसके बराबर होता है ये, रो क्यू VW1 प्लस VW2 इंटू यू. ऑलराइट, वर्क डन पर सेकेंड दैट इज इक्वल टू रनर पावर है. किसके बराबर होता है, रो क्यू इंटू VW1 प्लस VW2 इंटू यू. ऑलराइट, तो अब इस पर बेस्ड हम लोग एक क्वेश्चन करते हैं. डिजाइन करने वाला क्वेश्चन है. क्वेश्चन लिखना है, एंगल 165 जनरल इसलिए लेते हैं क्योंकि अब हमारा एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन कैन नॉट बी 180 डिग्री, 180 नहीं हो सकता है. तो उसको हम सबसे कम डिफ्लेक्ट कराना चाहते हैं ताकि उसके लॉसेस कम से कम हो. तो प्रैक्टिकली द वैल्यू अज्यूम्ड दैट इज 160 टू 168 डिग्रीज. तो हम उसका एवरेज ले लेते हैं 165 डिग्री. क्वेश्चन है, अ पेल्टन व्हील is to be designed
is to be designed with the following specifications. Is to be designed with the following specifications. फर्स्ट दे रखा है शाफ्ट पावर 1172 kilowatts, NS 750 RPM, overall efficiency 0.86, D by D is 1/6, CV दे रखा है हमें 0.98 and CU is given as 0.45. डिटरमाइन फर्स्ट है हमारा कैपिटल डी डाया ऑफ बकेट निकालना है. सेकंड हमें बताना है डाया ऑफ नॉजल स्मॉल डी. और थर्ड हम लोगों को बताना है नंबर ऑफ जेट्स रिक्वायर्ड. ठीक है, ये क्वेश्चन डिजाइनिंग का क्वेश्चन है, तो इसको एक बार ट्राई करके देखो होता है कि नहीं होता है. दिस क्वेश्चन ऑफ डिजाइनिंग है एंड लेट मी टेल यू वन थिंग. ये क्वेश्चन पूछा गया है इंजीनियरिंग सर्विसेज में. ESE का क्वेश्चन है. आप में से कोई ऐसा है क्या जो सेमेस्टर की प्रिपरेशन कर रहा है, who is currently in the college? How many of you are pass outs? और ऐसा मुझे कुछ आइडिया चाहिए. So please write your year of passing अगर आप पास आउट है. अगर आप किसी सेकेंड ईयर या थर्ड ईयर में, तो वो भी मुझे मेंशन कर दो, so that I will get to know what is the level of understanding. मुझे किस लेवल पे आपको पढ़ाना. All right, Rohit, you are in 4th semester. Okay. Third year student from mechanical engineering. Very good. आप लोगों ने ये सब कुछ पढ़ा होगा आपके जब आपने फ्लूइड मैकेनिक्स पढ़ा होगा आपके कॉलेज में, तो आपने ये सारी चीज़ें पढ़ी होंगी. हाँ, तो इसे सॉल्व करो. टेक 5 मिनट्स और फिर मैं सॉल्व करता हूँ फॉर ताकि आप आंसर चेक कर सको.
आशीष, you are from which department? Civil or mechanical? Civil. Alright, so next topic would be theory of structure. हम लोग स्टार्ट करेंगे स्ट्रक्चरल एनालिसिस. थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर बोलो, स्ट्रक्चरल एनालिसिस बोलो, दैट इज सेम थिंग. टॉस वी विल स्टार्ट आफ्टर वी फिनिश दिस. राइट, सो प्लीज वॉच दिस वीडियो टिल द एंड. ये लेक्चर हमारा हार्डली 4:30 तक फिनिश हो जाएगा. तो तब तक आप देखोगे, पढ़ोगे, तो यू विल लर्न समथिंग. प्लीज सॉल्व दिस पार्ट. इसको सॉल्व करो, मुझे आंसर बताना, आपका क्या आंसर आ रहा है. स्ट्रक्चर एनालिसिस बहुत जल्दी स्टार्ट होगा. विद इन 2 or 3 days इटसेल्फ स्ट्रक्चरल एनालिसिस स्टार्ट हो जाएगा. ऑलराइट, अभी देखते हैं, इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं. क्वेश्चन क्या है हमारा? क्वेश्चन दे रखा है कि अ पेल्टन व्हील इज टू बी डिजाइन विद द फॉलोइंग स्पेसिफिकेशन. सबसे पहला दे रखा है शाफ्ट पावर कितना होना चाहिए, 11772 किलोवाट, और टोटल हेड कितना दे रखा है, 380 मीटर्स. ऑलराइट, एन का वैल्यू कितना दे रखा है हमें, 750 आरपीएम. ओवरऑल एफिशिएंसी दे रखा है 0.86. ये हमें दे रखा है, सी भी दे रखा है, और एक सी यू दे रखा है 0.45. हमें निकालना है व्हाट इज द डाया ऑफ बकेट, व्हाट इज द डाया ऑफ नोजल, एंड व्हाट आर द नंबर ऑफ जेट्स रिक्वायर्ड. राइट, तो इसे कैसे करेंगे? सबसे फर्स्ट पार्ट जो हमें निकालना है, तो द फर्स्ट पार्ट इज डाया ऑफ बकेट. सो डाया ऑफ बकेट हम लोग निकाल सकते हैं इस तरीके से. यू किसके बराबर होता है, दैट इज इक्वल टू सी यू अंडर रूट 2GH, और यही किसके बराबर होता है, वाई डी एन बाई 60. तो एक्चुअली हम इन दोनों इक्वेशंस को इक्वेट कर सकते हैं. सी यू अंडर रूट 2GH दैट इज इक्वल टू पाई डी एन बाई 60. तो सी यू का वैल्यू हमें दे रखा है, दिस इज इक्वल टू 0.45 अंडर रूट 2 into 9.81 into H is 380, that is equal to pi into D into N का वैल्यू दे रखा है 750 divided by 60. So from here you will get the value of D as 0.164 meter. This capital D is actually your डाया ऑफ बकेट. ऑलराइट, ये हमारा डाया ऑफ बकेट आ गया. अब सेकंड में हम लोग आते हैं. सेकंड हमें निकालना है डाया ऑफ नोजल. तो यहाँ पे हमें दे रखा है D अपॉन D किसके बराबर है, 1/6. तो दिस डाया ऑफ नोजल विल बी इक्वल टू D/6, यानी 0.164 डिवाइड बाई 6. तो ये हमें मिलेगा. ऑलराइट, जिससे कैलकुलेट करने के बाद में ये थोड़ा ये नहीं आएगा. दिस विल कम आउट टू बी 0.989 मीटर. तो ये 0.989 मीटर, ये आएगा हमारे पास 0.164. तो स्मॉल डी हमारे पास में आएगा
0.164 मीटर। ओके, और लास्ट पार्ट हमारा है फाइंड द नंबर ऑफ जेट्स रिक्वायर्ड। नंबर ऑफ जेट्स रिक्वायर्ड। थर्ड है नंबर ऑफ जेट्स रिक्वायर्ड। ओके, अब नंबर ऑफ जेट निकालने के लिए हमें चाहिएगा शाफ्ट पावर की हेल्प चाहिएगी, और साथ में हमें सीवी की हेल्प चाहिएगी, और एक ये ओवरऑल एफिशिएंसी। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं ओवरऑल एफिशिएंसी एक्चुअली किसके बराबर होगा। दिस विल बी इक्वल टू शाफ्ट पावर अपॉन हाइड्रोलिक पावर, है ना। तो व्हाट इज शाफ्ट पावर? 11772 किलोवाट्स दे रखा है। व्हाट इज हाइड्रोलिक पावर? हाफ रो क्यू इंटू वी स्क्वायर, हाफ इंटू रो क्यू इंटू वी स्क्वायर, और ये हमें दे रखा है 0.86। ठीक है, तो यहाँ से इस पूरे इक्वेशन से हम लोग क्यू का वैल्यू निकाल लेंगे कि डिस्चार्ज कितना है। ऑलराइट, तो इसको निकालने के लिए मुझे वी निकालना पड़ेगा। वी इज सी वी अंडर 2GH, सी वी का वैल्यू 0.98, 9.81 इंटू 380। तो यहाँ से वी विल गेट द वैल्यू एज 84.61 मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ पे सारी वैल्यूज रखते हैं। 0.86 दैट इज इक्वल टू शाफ्ट पावर 11772 इंटू 10⁻³ watts अपॉन हाफ, रो इज 1000, क्यू वी नीड टू फाइंड इंटू 84.61 whole square. So as I solve this, 10⁻³ will get cancelled down. So from here I will get the value of Q as 3.82 मीटर क्यूब पर सेकेंड, है ना। अब हमारे पास ये डिस्चार्ज आ गया। अब ये जो डिस्चार्ज होगा इसको बहुत ध्यान से देखना। ये डिस्चार्ज क्या होगा? हो सकता है 2 जेट या 3 जेट या 4 जेट से कुछ डिस्चार्ज निकल रहा होगा। तो सिंपली एनी काइंड ऑफ डिस्चार्ज इज इक्वल टू, डिस्चार्ज हमारा किसके बराबर होता है? एरिया टाइम्स वेलोसिटी होता है, एरिया टाइम्स वेलोसिटी, और यहाँ पे इनटू नंबर ऑफ जेट्स। तो डिस्चार्ज हमें दे रखा है 3.82, नंबर ऑफ जेट्स n इंटू एरिया ऑफ वन जेट, π/4 इंटू स्मॉल d 0.164 का होल स्क्वायर इंटू वेलोसिटी ऑफ जेट। So that velocity of jet is 84.61. So if I solve this, यहाँ से मुझे n का कुछ वैल्यू मिल जाएगा। .138. Therefore, provide 3 number of jet. नंबर ऑफ जेट्स कितने हो जाएंगे? 3। नंबर ऑफ जेट्स विल बी इक्वल टू 3। ऑलराइट, सो इस तरीके से डिजाइनिंग का पार्ट वगैरह सारी की सारी चीज़ें होती है पेल्ट एंड व्हील टर्बाइन। ओके, आई होप आप लोगों को कुछ अच्छा लगा होगा, कुछ समझ में आया होगा। आज का ये सेशन हमारा मॉर्निंग 8 बजे का था, बट बिकॉज ऑफ सम इशू ये अभी करना पड़ा है हम लोगों को। सो सभी के लिए इम्पॉर्टेंट है ये कि सुबह 8 बजे 8 AM to 9 AM we will be having class on fluid mechanics on YouTube, and from 4 PM to 5 PM tomorrow we'll be having a special class
on Zoom. So that will be very much useful for you. आपको बहुत अच्छा लगेगा पढ़ के. So all these classes are free of cost. These classes are free of cost. अगर आपको कुछ भी डाउट है, if you have any kind of doubt, तो you can contact me. You can contact me at this ruchin.udz @gmail.com. Also, you can contact me here @Ruchin Tejawat @Ruchin Tejawat or ruchin.udz @gmail.com. Other than this also, if you have any kind of issue, so you can contact me directly. Alright, regarding the fee issue or any kind of issue, you can just mail me. You can mail me, you can ping me on Telegram also. If you want any kind of personalized study material, please mail me. I can send you that also. Alright, so but before that, you just mail me whatever your concerns are and just start studying. Just start studying. Alright, तो कल मॉर्निंग में हम लोग स्टार्ट करेंगे 8 बजे से. ओके, सो this is Ruchin Tejawat and I am signing off for this day. We'll meet tomorrow. Till then, enjoy your day. Take care. Bye bye.